Assalamu alaikum everyone. This is another online lecture for the course Object Oriented Programming. So previous few lectures के अंदर हम polymorphism and virtual functions and pure virtual functions के ऊपर discussion कर रहे थे. और last lecture के अंदर particularly हमने we moved one step ahead from virtual functions and we discussed pure virtual functions या जिनको हम कहते हैं abstract classes. ठीक है. So आज I wanted to get in some coding practice using abstract classes. Okay, so let's see how we use abstract classes and how we access them and how we define pure virtual functions and how we use them. So we're gonna write a fairly basic sort of a program. Okay, जिसके अंदर I'm simply going to have one base class and let's say let's just have two derived classes. Okay, so what can we? Let's just design a factory setup. ठीक है यानी कि I have multiple different types of factories and let's just make it up as we go along. ठीक है, so let's say I have a class called factory. ठीक है, and factory के अंदर I have let's say two data members. I'm gonna make them protected so I can inherit them. They are protected members हैं and the members are string type. I have name and let's say I have city यानी कि इनकी location कहाँ पे भी है. ठीक है, then I have a constructor for my factory class जो कि क्या करता है simply input ले लेता है for the name and the city. ठीक हो गया. So basically that would mean a simple cout statement saying factory, what is wrong here, factory name. ठीक हो गया एंड ये हम लेट्स से cn कर लेते हैं. अभी मैं सिंपल cn यूज कर रही हूँ. आई डोंट थिंक आई बी यूजिंग लॉट ऑफ स्ट्रिंग सो आई डोंट थिंक कि वो स्ट्रीम के एरर्स नहीं देने चाहिए इसको. ठीक हो गया. सो आई हैव फैक्ट्री नेम. लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस हियर एंड देन आई आल्सो हैव फैक्ट्री लोकेशन. ठीक है, एंड द फैक्ट्री लोकेशन इज सिंपली गोइंग टू गो इनटू माय सिटी का वेरिएबल. ठीक है, सो दिस इज माय सिंपल constructor, nothing new here. अब हम लिखते हैं कि हम basically design क्या करना चाह रहे हैं. So the setup that I think we should go with is, so let's say I have multiple different types of factories and I want to see what the generated income या अब generated income कह लें या simply earnings क्या हो रही हैं हमारी from the different types of factories that I have. ठीक है, so I don't want to see all of them. I generally would probably only be using one. So let's say कि मैं I define a virtual function जो कि return type हम नहीं रखते या रख लेते हैं, चलिए float type रख लेते हैं and I am defining it या I am calling it as earnings. ठीक है, so last lecture के अंदर हमने कहा था यहाँ तक अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ this is what we call a virtual function. लेकिन now what we are going to go towards is कि अगर मैं इसको equal to 0 कर दूँ, so now what this becomes is a pure virtual function. ठीक है, so pure virtual function की क्या बात होती है, just as soon as I wrote this equal to 0 over here, my factory साथ में मेरे पास probably कोई running cost होंगी of my factory. ठीक हो गया. So I have running cost and overall मेरे पास कोई integer amount में कोई units sold भी होंगे. ठीक है, so let's call it units sold. ठीक है, so this is a very simplistic type of setup. हमें फैक्ट्री डिजाइन देखना भी हमारा मकसद नहीं है. we're simply looking into के प्रोग्रामिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं. ठीक हो गया. so then that means कि now I also need a public constructor for my shoe factory. ठीक है, दिस इज माई पब्लिक कंस्ट्रक्टर. और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, लेट्स से कि वो इन सब डेटा मेंबर्स के लिए यूजर से इनपुट ले लेता है. सो आई हैव सी आउट स्टेटमेंट्स विच से कि व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक हो गया. एंड ये मैं सिंपली लेट्स से इसको यहाँ पे एंडल करते हैं एंड देन आई रीड in sale price. ठीक हो गया. And let me just copy and paste this for all other variables. ठीक है. I have 1, 2, 3, 4 of these. So let's have
for such statements. Next is what is the cost price of the product, and this I'm simply going to read into my variable called cost price. Then I have what are the running costs. रनिंग कॉस्ट्स क्या हैं, ये हम इनपुट ले लेंगे और इसका इनपुट हम डाल देंगे इनटू रनिंग कॉस्ट्स. एंड सिमिलरली लास्ट केस सिनेरियो जो मेरे पास है वो है यूनिट्स सोल्ड का. ठीक है, सो हम इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख लेते हैं. यूनिट्स सोल्ड क्या हैं और यूनिट सोल्ड हमारे हम इनपुट कर लेते हैं इनटू माय यूनिट्स सोल्ड वेरिएबल. ठीक हो गया. सो दिस इज सिंपली माय शू फैक्ट्री के नाम का एक कंस्ट्रक्टर. Now I also need to override this virtual function. ठीक है, so this virtual function जिसका नाम मैंने earnings रखा था, so I need to make sure that I have a float earnings type function in this class as well. ठीक है, और इसकी earnings जो हैं हम define कर लेते हैं as let's say एक float type है जो कि मुझे ग्रोस इनकम बता देता है, और ग्रोस इनकम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यूनिट्स हमारे जो सोल्ड हैं इनटू द सेल प्राइस. ठीक हो गया. लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल. यूनिट्स इनटू सोल्ड इनटू सेल प्राइस है, इसको हम सी आउट कर लेते हैं कि लेट्स से व्हाट माय ग्रोस इनकम इज. ग्रोस इनकम है और यहाँ पे हम इसको सी आउट कर देते हैं. ठीक हो गया. And let me end this statement here. Then I have a float type, let's say net income. जो net income मैं define कर रही हूँ as gross income minus हमने कुछ cost define की होंगी, वो क्या है, वो हम लोग define कर लेते हैं as क्या होना चाहिए, हाँ जी, हमारी कॉस्ट प्राइस के मुताबिक होना चाहिए ना, राइट. सो आई हैव जितने भी मैंने यूनिट सेल किए हैं उनको बनाने की मेरी कोई कॉस्ट प्राइस भी होगी. सो लेट्स जस्ट डिफाइन कि मैं इसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. एंड आई ऑल्सो हैव सम रनिंग कॉस्ट. ठीक है, सो उसमें से भी मैं रनिंग कॉस्ट भी माइनस कर लेती हूँ. ठीक हो गया. एंड लेट मी हैव ए सी आउट स्टेटमेंट फॉर दिस. सो माई नेट इनकम इज, और यहाँ पे हम इसको नेट इनकम शो करा देते हैं. साथ में हम थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं कि अगर हमारी नेट इनकम जो है इज लेस देन 0 तो सी आउट हो जाना चाहिए कि फैक्ट्री इनकर्ड नेट लॉस. ठीक हो गया. और एल्स ही होना चाहिए, ज़ाहिर दो ही ऑप्शन हैं. एल्स क्या हो जाए कि सी आउट ये है कि फैक्ट्री जनरेटेड अ नेट इनकम या नेट प्रॉफिट. ठीक हो गया. लेट्स हैव इन द एल स्टेटमेंट्स हियर. ठीक है, एंड आल्सो हियर. ठीक हो गया. सो हमने ये सिंपल सा फ्लोट अर्निंग्स फंक्शन डिफाइन कर लिया. सो दिस वाज माय शू फैक्ट्री क्लास. लेट्स हैव अनदर टाइप ऑफ क्लास. लेट्स कॉल इट क्लोथ्स रख लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्लोथ्स फैक्ट्री एज वेल. ठीक है, और क्लोथ्स फैक्ट्री के अंदर हम थोड़ी चीजें डिफरेंटली डिफाइन कर लेते हैं सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश के हम कौन सा वाला क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहे हैं. सो लेट्स से इंटीजर टाइप में हम रख लेते हैं कि इसके ऑनलाइन सेल्स यूनिट्स कितने हैं. ठीक है, और साथ में हमारे पास स्टोर सेल्स यूनिट्स कितने हैं. ठीक है, सेल्स यूनिट्स. ठीक हो गया. तो दिस कुड बी वन थिंग. साथ में हम लेट्स से एक जीएसटी का रेट डिफाइन कर लेते हैं. साथ में लेट्स आल्सो से वी हैव स्टोर रेंट कितना दे रहे हैं. ठीक हो गया. एंड देन वी कुड हैव लेट्स से सैलरीज जो हैं एम्प्लॉइज की.
and we could also have and we need to also have cost per item क्या है ठीक है ठीक हो गया सही है. So now I need to define my constructor. So I'm going to define it in public and the constructor is going to be referred to by the name of the class. So this is my basic constructor और constructor के अंदर मैंने वही सारे काम करने हैं कि मैंने cout statements के through input ले लेना है ठीक है. So online sale units क्या हैं ये इन करने हैं हमने और सी इन कर लेने इनटू माय ऑनलाइन सेल्स यूनिट वेरिएबल ठीक है. आई एम सिंपली गोइंग टू नाउ कॉपी दिस एंड रेप्लिकेट इट ओवर डिफरेंट सारे वेरिएबल्स के ऊपर ठीक हो गया. सो आई हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑफ दीज ठीक है. सो आई हैव ऑनलाइन सेल यूनिट्स देन आई हैव स्टोर sale units हमारे कितने हैं. let me just change this over here. so I have store sales units ठीक है. next up हमने define करना है GST कितना है हमारा ठीक है और उसको हमने read कर लेना है अपने GST के variable के अंदर. next I have store rent कितना है. so let's say store rent per year की बात कर रहे हैं हम ठीक है. so and I am simply going to read that into store underscore rent नाम था ठीक है. and then let's take it total paid salaries यानी total amount जो है let's consider कि ये वो वाला variable है और ये हम सेव कर लेते हैं अपने salaries वाले unit के अंदर small s ठीक है. and lastly we have what is our cost per item. cost per item हमारी क्या है and let's just read it into our cost per item variable ठीक है. so this is simply my constructor. now I obviously also need to override the pure virtual function. so the pure virtual function is earnings है जिसकी return type float थी and this is a function ठीक हो गया. so now that I have that इसकी भी हम earnings थोड़ा define कर लेते हैं. इसको भी basically we're going to do all of that लेकिन थोड़ा सा हम इसका formula फर्क कर लेते हैं ठीक है. so I have gross income. इसकी gross income हम define कर लेते हैं कि हमारे पास जो online sales units हैं इसके अंदर हम add कर लेते हैं अपने store sales units लेकिन store sales units के ऊपर हम अपना let's say GST भी apply कर लेते हैं ठीक है. और हम इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए और इनकम है ना तो दैट मीन्स कि हम ठीक है ये राइट. इसके अंदर हमने अच्छा ये सिर्फ यूनिट्स हैं. सो वी आल्सो नीड समथिंग व्हिच इज सेल प्राइस ऑफ आइटम ठीक है जो हमने डिफाइन नहीं किया. सेल प्राइस पर आइटम है. सो लेट मी आल्सो इंक्लूड दैट ओवर हियर सेल प्राइस पर आइटम and let's also get that from the user. so I have sale price per item and we can enter this here sale price per item. अच्छा वो per नहीं है हमारे वेरिएबल के अंदर sale price item ठीक हो गया. and we can multiply that here हमारे पास gross income आ जाएगी. let's just see out the gross income I have end L here और यहाँ पे मैं I wanted to show the gross income variable ठीक है. साथ में हमें कोई net income भी define करनी है और हमारी जो net income है that is equal to अब net income should be equal to whatever our gross income was. gross income में से हमें माइनस कर लेने चाहिए बेसिकली जो भी हमारे कॉस्ट्स हैं राइट. सो कॉस्ट अभी मैंने क्या डिफाइन किया है मैंने एक स्टोर रेंट डिफाइन किया है. सो दैट इज कॉल्ड स्टोर रेंट माइनस कर लूँ मैं ईयरली और स्टोर रेंट के अंदर मैं वो ऐड कर लूँ जो सैलरीज लेट से मैंने पे की है ठीक हो गया. सो दैट वुड बी माय फॉर्मूला फॉर द नेट इनकम. ऑब्वियसली
दिस इज ऑल वेरी इनकरेक्ट, इस तरीके से कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, बट लाइक आई सेड दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ द असाइनमेंट, वी आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू सी कि हम इसको कोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन वी कैन सिंपली वंस अगेन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ के अगर हमारा नेट इनकम is less than 0, so let me just copy this from the previous class, ठीक है। so if the net income is less than 0, तो ये करते हैं यहाँ पे हम इसको शू ऐड कर देते हैं कि ये शू फैक्ट्री थी, एंड हम इधर नीचे जो है उसको क्लोथ्स फैक्ट्री ऐड कर देंगे। so we have clothes factory and this is also for a ओके जी। तो हमने ये भी ऐड कर लिया है। नाउ वी आर डन विद आवर डिराइव्ड क्लासेस, लेट्स जस्ट राइट आवर मेन फंक्शन, ठीक है। अब मेन के अंदर आई एम सिंपली गोइंग टू आस्क द यूजर व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्री दे हैव, ठीक है। सो लेट मी जस्ट कॉल इट चॉइस टाइप वेरिएबल है, एंड आई एम गोइंग टू सिंपली क्रिएट अ फैक्ट्री टाइप पॉइंटर, ठीक है। And then I'm going to simply ask the user. So I have what kind of factory is it? ठीक है, and I'm simply going to see in that statement into choice variable. ठीक हो गया। So what kind of factory is it? And now I'm simply using if else statements. ठीक है। So अगर मेरी जो choice है it is equal to shoe, ठीक है, यानी कि अगर उसने शू फैक्ट्री एंटर किया है तो मैं ये करूं कि मैं अपने पॉइंटर को एक न्यू टाइप ऑफ शू फैक्ट्री ऑब्जेक्ट जो है वो असाइन कर दूं, और इसको अब हम चेंज कर लेते हैं कि अगर लेट्स से शू फैक्ट्री नहीं है, दैट मीन्स आई एम हैविंग अनदर एल्स स्टेटमेंट इफ इन फैक्ट दिस चॉइस वाज क्लोथ्स, सो इसको हम दे दें एक क्लोथ्स टाइप फैक्ट्री, ठीक है, क्लोथ्स फैक्ट्री दे दें। और इसके अलावा अगर कोई भी ऑप्शन है तो सी आउट कर दें कि ये जो है दिस वाज एन इनकरेक्ट चॉइस, लेट्स से, ठीक हो गया। फिर अब पॉइंटर को जो भी कुछ असाइन हो गया है इसके अंदर क्या हो कि वो उसका अर्निंग्स फंक्शन जो है वो उसको कॉल कर लिया जाए, ठीक हो गया। आई थिंक दैट इज इट फॉर आवर प्रोग्राम। लेट्स जस्ट टेक वो आई डिड रन इट, और यहाँ पे एरर ये आया कि हमने इस क्लोज फैक्ट्री को हमने इनहेरिट ही नहीं करवाया, ठीक है। सो ऑब्वियसली दिस नीड्स टू इनहेरिट फ्रॉम आवर फैक्ट्री क्लास, ठीक हो गया। सो लेट्स रन इट, वी विल प्रॉब्ली गेट सम सिंटैक्स एरर्स, लेकिन हम उससे डील कर लेते हैं, ठीक है। Okay, so let's see what it is saying. So it says virtual float factory is protected. अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे मैंने virtual float factory जो है वो define किया है उसको मैंने protected बना दिया है। हाँ, यहाँ पे हमें क्या लिखना था? This should be public. ठीक हो गया? Let's see. Okay, so we're good. ठीक है, so what kind of factory is it? So let's say it's a shoe factory, and the factory is called what, ठीक हो गया, and I have the location and sale price, let's say is $34, cost price is $23, and the running costs are 56,000, units sold are let's say 6,000 and whatever, ठीक है। सर हमारे पास ये चीज कैलकुलेट हो गई है, ठीक है। Alright, so again, if we made the shoe choice, तो इस pointer को assign हो गया shoe factory type object, और अगर हमने choice close लिखी थी तो हमें assign हो जाएगा clothes factory type, ठीक है। So one thing that I wanted to do here was add this, ठीक है। ये मैंने I think जब record नहीं करी थी I did go back and add this function, जिसको मैंने simply कहा है virtual void print, ठीक है। I wanted to show, जो हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम उसको redefine नहीं करते virtual functions को, pure virtual functions को in our derived classes तो क्या होता है। So this is what I wanted to show.
अब मैंने क्या किया, मैंने एक वर्चुअल वॉइड प्रिंट इक्वल टू 0, दिस मीन्स कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, वो डिफाइन कर दिया है अपनी फैक्ट्री क्लास के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर अब जाके उसको ओवरराइड नहीं किया, ठीक है। मैंने डिराइव्ड क्लासेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, मैंने सिंपली ये जो स्टेटमेंट है ये जाके मैंने ऐड कर दी है अपने फंक्शन के अंदर, जो कि मेरा फंक्शन कह रही हूँ, सॉरी, अपनी फैक्ट्री क्लास बेस क्लास के अंदर, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी रन द कोड नाउ। सो व्हाट डज इट सेज कि ये जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ न्यू शू फैक्ट्री टाइप, वो क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप। हमने यही बात कही थी अपने लेक्चर्स के अंदर कि अगर मेरे पास जो बेस क्लास है उसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन है, देन वो लाजमी हो जाता है कि हर डिराइव्ड क्लास को भी वो प्योर वर्चुअल फंक्शन को रीडिफाइन करना जरूरी है। अगर वो नहीं करती तो वो क्लास खुद एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्योंकि मैंने वॉइड प्रिंट को अपनी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर रीडिफाइन नहीं किया या उसको प्रॉपरली मैंने ओवरराइड नहीं किया, सो नाउ मेरी हर डिराइव्ड क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है, विच मीन्स कि मैं इसके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज नहीं करवा सकती। ठीक हो गया। सो आई डू होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी, और अगर अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड आई थिंक आपकी जो असाइनमेंट है इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड ओवर हियर, सो आई होप वो आप लोगों से इजीली हो जाएगी। पर्टिकुलरली जो हमने अकोमोडेशन वाला लेक्चर किया था, लेक्चर कह रही हूँ, कोड प्रैक्टिस किया था, एंड दिस कोड इफ यू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ, आई थिंक द assignment task should not be very difficult. ठीक हो गया? So I think that is it for today. And again, if you have any questions, do please ask me. And that is all. Thank you everyone, and Allah Hafiz.